So good evening and welcome. Welcome to DHV Spirituality and Healing Meet, and today is the Wednesday meet. And the agenda for today is very powerful topic, Vasudhaiva Kutumbakam. Yes, and this is in line with what we have done in the last couple of weeks. We have seen miracle manifestation, we have seen Satyug manifestation, we have seen free will and venom manifestation. So it is all interlinked and connected. And today's topic is Vasudhaiva Kutumbakam. Yes. So when you hear that topic, what comes to your mind? Anything that comes to your mind? How many of us know the meaning of Vasudhaiva Kutumbakam? सुना तो बहुत है. हाँ, कौन बोलना चाहेंगे? जैसे ये सुनते हैं क्या आता है दिमाग में? वननेस, सारी दुनिया अपनी है, अपनी फैमिली. Yes. Oneness. The whole world is our family. Actually, the translation goes, Vasudha is Earth, planet Earth. So Vasudev, anybody who is living on this planet Earth, is part of the Kutum. That means the family. So we are all a big, happy, joyful, peaceful family. That is the meaning. And if that has to be manifested on the planet Earth, that is the project that people are working on, that human souls are working on, right? So moving towards oneness and creating universal brotherhood. That is another term which we can use. Universal brotherhood. Yes? Okay. So if that is what we want, ideally that is the situation we want, right? तो फैमिली में कैसी एनर्जी होती है? अगर सब एक फैमिली है तो फैमिली में एनर्जी कैसी होती है? व्यू पॉइंट्स तो अलग अलग होंगे ना. हस्बैंड वाइफ के भी अलग होते हैं, फादर सन के भी अलग अलग होते हैं, तो व्यूज तो अलग अलग होंगे, परसेप्शंस अलग अलग होंगे. लेकिन क्या होता है फैमिली में? बॉन्डिंग है, देयर इज लव, देयर इज रेस्पेक्ट, there is joy, there is peace. Correct? So it doesn't mean Vasudhaiva Kutumbakam means everybody talks the same language, everybody has the same thought. That will never happen. So we can have our different perceptions, we can have our different beliefs, we can have our different practices, but we have a very strong bonding of oneness with each other. We respect each other, we love each other. There is an energy of joy and happiness, peace and love in our family. Correct? That is the ideal family, and that is what we want on the planet Earth. So that is the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. Everybody clear on this? Yes, no doubts. Everybody wants this, right? अगर सब ये चाहते हैं तो हो क्यों नहीं रहा? We all agree, everybody wants this, right? Then why is this not happening? Definitely something is missing, right? क्या missing है? If you see today, of course people will say कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है. हाँ, वार है, हॉस्टिलिटी है, हर जगह लूटपाट है, करप्शन है, ग्रीड है, सेल्फिशनेस है. That is what we are seeing. War, hostility, all that is manifested in Kali right now. So that is the situation. So obviously today, if we see the world scenario, or even in a country, it doesn't show universal brotherhood, right? So ego, selfishness, greed, fear, anger, jealousy, this is in the forefront. ये ज़्यादा emotion है सामने. So what is happening? Violence is more, separation is more. So oneness की जगह पे people are fragmented, separated on different lines. On the basis of, is my audio clear? My internet is showing unstable. It's okay? Yeah. Okay. So separation is obvious, right? On the basis of country, race, religion, and whatnot. We can think of many other things, right? So we are all separated and moving in different directions. Mutual respect is not there. I'm talking broadly because we are talking of Kalyug ki kahani suna rahe, hai na? So this is what is happening. So first, let us see why this has happened. अगर ये है तो ये क्यों हुआ? And क्या वासुदेव कुटुंबकम एक reality है? Scientifically, can we say that?
तो फर्स्ट लेट अस लुक एट दैट. स्पिरिचुअली तो बहुत अच्छी बात लगती है. द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली. इज साइंटिफिकली इज देयर एनी प्रूफ दैट वी आर ऑल वन? कौन बोलना चाहेंगे? व्हाट द साइंस सेज? विजय जी इज मोर साइंटिफिक. हाँ, तो विजय जी क्या बोलते हैं आप? अरे नहीं सर, मैं तो आई एम अ स्टूडेंट. बाकी आई अंडरस्टैंड कि भाई द लाइफ ऑल स्टार्टेड from the same roots. So at the end, I mean, we are all one. Okay. At least we understand this much. Very good, Vijay ji. So let's acknowledge Vijay ji. See, at least we understand this much कि मैं आत्मा हूँ और मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, जैसे भी हम चाहते हैं. तो हम इतना तो जानते हैं कि मैं एनर्जी हूँ. अगर मैं एनर्जी हूँ तो मेरे सामने वाला भी एनर्जी है. Right? If I am a soul in a body, then the person in front of me is also a soul in the body, right? So basically, we are all energy. So energy can never be created, can never be destroyed. It always was, always is, and always will be. Eternal है. So scientifically, we can say that yes, at the energy level, we are all one. At the soul level, we are all one. And spiritually also, if we understand, we say that हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, right? तो सुप्रीम परमात्मा के बच्चे हैं तो सारे ही बच्चे हैं, तो एटलीस्ट वी आर ब्रदर्स, राइट? तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का तो एक पॉइंट बन ही जाता है. तो चाहे वो साइंटिफिकली लो या स्पिरिचुअली लो, वी आर ऑल कनेक्टेड. बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग कनेक्टेड, वी आर अटैच्ड. We are attached to a few things, to few people, and we are totally averse to some people. तो राग द्वेष में फंस गए हैं. किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं और किसी के साथ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता हमको. तो ये राग द्वेष जो है, दिस हैज एक्चुअली ओवरटेकन आवर वननेस ऑफ टुगेदरनेस. ऐसे एक फैमिली में भी है, अगर कोई एक फैमिली मेंबर के साथ बहुत अटैच्ड है, उसके वो हमेशा उसी के साथ ही रहना है, और एक ऐसा है जिसके साथ नहीं रहना है, तो क्या होगा? क्लेश होंगे ना. करेक्ट. नाउ यू कैन इमेजिन हु दैट पर्सन कुड बी इन एनी फैमिली. अगर एक के साथ बहुत अटैच्ड है कि चाहिए ही चाहिए, दूसरे के साथ ये कि बिल्कुल नहीं चाहिए, obviously there is going to be a crisis in the family, and that is what is happening in the world also today. अब ये राग द्वेष बाहर है या अंदर है हमारे? बाहर की दुनिया में तो कोई राग द्वेष नहीं है. राग द्वेष तो मेरे अंदर है. मेरे अंदर है. मेकिंग सेंस? Making sense? Why is my Why is voice echoing? Gunjan ji, I think there's a problem in my phone. I'll just phone ठीक करो, because if I am hearing my voice back, it is not a great sign. Okay, so what is important is that राग द्वेष मेरे अंदर है. जो भी अंदर विकार मेरे को दिख रहे हैं बाहर, एंगर, फियर, हेट्रेड, एनवी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, कहाँ है ये? बाहर की दुनिया में नहीं है, ये मेरे अंदर है, और मैं दुनिया के ऊपर वो थोप रहा हूँ एक तरीके से. And that is the reason for all the hostility and the violence in the outside world, or disturbance in the outside world. Correct? And that is why this world is in such a situation. क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार से ही हमारी सृष्टि का निर्माण होता है. करेक्ट. संकल्प से सिद्धि, हमने किया था ये पहले. संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है. तो अगर ऐसी दुनिया हमने क्रिएट कर दी है, चाहे वो कलयुग में हो या जिस मर्जी युग में हो, ऐसी दुनिया हमने क्रिएट कर दी है जहां वायलेंस है, फियर है, एंगर है, हॉस्टिलिटी है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज शोइंग दिस एनर्जी. So all of us have contributed to it. हम सबने कंट्रीब्यूट किया. मेरे अंदर भी कुछ एंगर है, फियर है, हॉस्टिलिटी है, वायलेंस है, जो मैंने कंट्रीब्यूट किया, एंड टोटली मिलके एक वार की सिचुएशन बन गई जो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है. या वो अनरेस्ट कहीं ना कहीं एजिटेशंस में आ रहा है, चाहे वो फार्मर्स एजिटेशन में हो या जहां मर्जी हो, क्योंकि अंदर का एंगर और वायलेंस हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. It is our contribution which is creating that, and it is only our contribution
which is going to reduce that. तो अगर एंगर और वायलेंस जो हमको दिख रहा है दुनिया में हो रहा है उसको कम करना है तो अगेन फॉर्मूला तो वही है ना, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होगा, संकल्प से सिद्धि होगी। तो अब हमारे संकल्प में क्या आने चाहिए, हमारे वो संस्कार चाहिए हमको जो एंगर हॉस्टिलिटी को कम करे, लव पीस एंड जॉय, ये संस्कार हमको चाहिए जो बाहर अगर फैमिली में चाहिए, हमको पूरे वर्ल्ड में चाहिए, तो ये हमको इन्वोक करने हैं और ये हमको कंट्रीब्यूट करना है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग? इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। अब कोई मेरे से बोलेगा बाहर वार हो रहा है, लव पीस एंड जॉय कहाँ से लाएं? लव पीस एंड जॉय कभी भी बाहर से नहीं मिलेगा। दिस इज योर इंट्रिंसिक नेचर, लव पीस जॉय, दिस इज योर बर्थ राइट। आप ये संस्कार लेके पैदा हुए हैं, ये वो डिवाइन संस्कार है जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है, लेकिन हमने इसको कभी पाल पोस के बड़ा नहीं किया। हमने किसको पाल पोस के बड़ा किया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे पॉइजन हमने खूब भर भर के लिए और कई जन्मों से लेते आ रहे हैं। तो ये संस्कार बहुत पक्के हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट वी ऑपरेट बाय सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, बाय डिफॉल्ट अवर ईगो गेट ट्रिगर्ड। हमको गुस्सा करना बड़ा नेचुरल लगता है, माफ करना, माफ कैसे कर दूं उसको, कीड़े पड़े हैं उसके मुंह में मगरमच्छ के साइज के। दैट इज हाउ वी ब्लेस पीपल, राइट? सो बाय डिफॉल्ट वी आर मूविंग टू क्रिएट कलयुग मोड। हम ज्यादा वार और हॉस्टिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? हमारे अंदर के संस्कार ही वही हैं, फेयर, एंगर, हॉस्टिलिटी, वायलेंस, यही हम क्रिएट कर रहे हैं और यही हम रेडिएट कर रहे हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है कि जो वीक माइंड होगा वो अत्याचार करेगा। दो कंट्रीज जो हैं वो वॉर करेंगे, और कहीं नेचुरल कैलामिटी होगी, हम सोचेंगे अच्छा हुआ मेरे को नहीं हुआ, बाकी मरे तो मरे। इतनी ईगो और सेल्फिशनेस में हम जी रहे हैं। कहीं अत्याचार हो तो हम सोचते चलो अच्छा भी मेरे को तो नहीं हुआ ना। रोड एक्सीडेंट होता है, पीपल टर्न अवे एंड वॉक अवे, कंपैशन इज गॉन आउट ऑफ द विंडो। आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम नॉट क्रिबिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को चेंज करना है तो क्या करना है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में लव पीस एंड जॉय लाना है। अब ये तो वही बात हो गई, अगर हम बोले कि एक पॉन्ड है जो सूखा हुआ है, तो उसमें हमको एक गिलास दूध डालना है। सब लोग दूध डालेंगे तो वो तालाब जो है पूरा दूध का बन जाएगा। हाँ, सबको मालूम है कहानी क्या हुई? सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है, वी ऑल विल डू, दिस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो सबको फेयर, एंगर और हेट्रेड की जगह पे, सेल्फिशनेस और ग्रीड की जगह पे लव पीस एंड जॉय की एनर्जी डालनी है। तो सब एक गिलास दूध लेके आएंगे और उसमें रोज डालेंगे और फिर उसमें वो भर जाएगा। करेक्ट? अब सबने क्या सोचा, सारे तो दूध डाल ही रहे हैं, मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन क्या हुआ, तालाब में पूरा पानी था। एवरीबडी थॉट द सेम। तो लव पीस एंड जॉय किसको लाना है? कोई और लाए ना लाए, मैं लेके आऊंगा। कितने लोग ये कमिटमेंट कर सकते हैं? आज से, अभी से मैं अपने अंदर वो संस्कार, दिव्य संस्कार जगाऊंगा जो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी डोंट हैव टू क्रिएट इट, इट इज ऑलरेडी देयर, वी हैव फॉरगॉटन इट। अमित जी आज है नहीं, वरना वो बोलते वी आर गॉड्स विद एमनीसिया। ये संस्कार हमारे अंदर है, हम भूल गए और फिर हम ये बाहर मांग रहे हैं। वेयर आर वी लुकिंग फॉर लव नाउ फ्रॉम अदर पीपल? वेयर आर वी लुकिंग फॉर पीस एट अदर प्लेसेस? तीर्थ स्थान पे जाएंगे और हमको 2 मिनट की शांति मिलेगी। लोगों से भी बोलते हैं ना, 2 मिनट की शांति तो दे दो मेरे को। हम शांति के सागर हैं और हम 2 मिनट की शांति के लिए परेशान हो रहे हैं। तो वी गो टू प्लेसेस टू फाइंड पीस, वी गो टू अदर पीपल टू गेट लव एंड हैप्पीनेस। वेयर डू वी फाइंड हैप्पीनेस? शॉपिंग में, वेकेशंस में,
रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, चलो आज बहुत बढ़िया डिनर ऑर्डर करेंगे, पार्टीज में, बाहर में, यहाँ पे खुशी ढूंढ रहे हैं। Whereas I am the ocean of love, peace and joy. It is my inherent nature. ये संस्कार मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। हम ट्रेजेडी गाने इतने गाने शुरू कर दिए हैं कि हमको कॉमेडी गाने भूल गए। We love being a victim. रोने धोने में बड़ा मजा आता है ना, ब्लेम करने में कितना मजा आता है। कुछ गालियां इसको दो, कुछ गालियां बॉस को दो, कुछ गालियां पड़ोसी को दो, कुछ गालियां इनको दो, उनको दो, कुछ नहीं तो मोदी को दो। हाँ, तो we have become a very habitual of the victim syndrome. We have forgotten how to create love, peace and joy and radiate it. And सभी लोग भूल गए हैं। तो कलयुगी आएगा और क्या आएगा, right? But still in this world there are many people who are doing this, love, peace and joy create करके भेज रहे हैं। और ऐसे लोगों की हम बहुत उनको फॉलो भी करते हैं, उनको बहुत मानते भी हैं, right? And I don't have to mention all the spiritual gurus जिनको हम फॉलो करते हैं, they are all teaching us the same thing. And many of us are also doing that, by the way. No? Let's not be very harsh with ourselves. We are also doing that. But the concept has to be start from myself. If I have to express love in the outside world, it has to start with self-love. मैं अपने अंदर love इतना भर लूं, that ocean of love should fill my heart. My heart is like a container and it should overflow. Overflow होगा तो सब लोगों के पास जाएगा. Correct? Inner peace has to lead to the world peace. मैं अगर शांत हूं तो मैं किसी भी सिचुएशन में वो शांति का वाइब्रेशन भेज सकता हूं और पूरे वर्ल्ड में वो वाइब्रेशन जाएगा। मैं खुश हूं तो मैं खुशी बांट सकता हूं, एंड देन आई कैन स्प्रेड हैप्पीनेस एंड ब्रिंग हेवन ऑन अर्थ। वी कैन मेक पैराडाइज राइट नाउ। हेवन इज नाउ हियर बोलते ना, हेवन इज नो वेयर और हेवन इज नाउ हियर। ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन क्रिएट करने लग जाओगे तो अभी यहीं बन जाएगा हेवन। बिकॉज लव, पीस एंड जॉय ही की एनर्जी ही रेडिएट करनी है। How many of you are okay with me? Are in sync with me? Yes? Good. So now let us have some sharing, because ज्ञान पहला डोज इतना ही है, बाकी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या खुल के आ रहा है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड कि what I have said is not practical, नहीं हो सकता? So let's have a discussion. And if you agree with me, great. So your job starts if you agree with me. From today, this moment onwards, you will radiate only love, peace and joy, irrespective of what situation comes to you in your life. बीमार हो, never mind, I will radiate only love, peace and joy. अपने आप enthusiasm आएगा, अपने आप लोग जुड़ेंगे, अपने आप काम होगा। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एनर्जी लव, पीस एंड जॉय के साथ होगी तो वो काम अच्छा रिजल्ट देगा। आधे मन से काम करने से कितने लोगों के रिजल्ट आए हैं? जब आधे मन से काम करते हो कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं? पैथेटिक, मिजरेबल, फ्रस्ट्रेशन, डेस्पिरेशन, ये सब आता है। लव, पीस एंड जॉय अपने अंदर क्रिएट करो और फिर छोटा सा कोई काम करके देखो, यू विल बी बबलिंग विथ एनर्जी, राइट? I can lead this session by being very upset also. All of you will start crying because I will radiate that energy of sorrow to everybody. सब दुखी होके जाएंगे। कितना मजा आएगा। प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताइए। एक प्रॉब्लम है। वेल थ्योरेटिकली आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन क्या होता है, सेम वाइब सबको नहीं दे पाते। अभी जैसे आई मीन द पीपल दैट यू नो एंड द पीपल दैट यू रिलेट विद, उनको तो आप ये वाइब दे देते हो, और जो पीपल दैट यू कंप्लीटली डू नॉट नो उनको भी आप दे देते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसा फीलिंग आता है कि वो अननेसेसरी का इंटरफेरेंस बन रहे होते हैं, यू नो। तो हालांकि इट्स लव, पीस एंड जॉय फॉर देम एज फार एज आई एम कंसर्न, लेकिन वो वाइब आता नहीं है इजीली।
तो क्या क्या कौन सी एनर्जी आती है उनके लिए? आता तो लव पीस एंड जॉय है, लेकिन एक एक थोड़ा सा वो तरस सा आता है। इनफैक्ट एक बार संजीव जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, वो बीमार वाली स्टोरी जो बताई थी। तो या तो वो उसको नॉलेज नहीं है या वो बीमार है। सो आइदर वे देर इज लव पीस एंड जॉय फॉर हिम, बट ऑल्सो देर इज अ फीलिंग कि बेचारा है, यू नो। तो बेचारे की जगह कंपैशन कर दो ना, पिटी मत करो। पिटी में तो नेगेटिव एनर्जी जाएगी। कंपैशन रखोगे तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए करोगे, राइट। चाहे वो सर्वेंट हो या डॉग या कोई भिखारी हो। उस पर दया नहीं करनी है, उसको कंपैशन से देखो राइट। आप। अल्टीमेटली तो वो भी सोल है ना, कॉकरोच भी सोल है, करेक्ट। करेक्ट। भिखारी भी सोल है, डॉग भी सोल है, टाइगर भी सोल है, हाँ हाँ, बकरी भी कॉकरोच सोल की है। स्टोरी आपने बताई थी। राइट। तो जहां लाइफ है वहां पे डिवाइन है। तो दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? जहां पे लाइफ है वो डिवाइन है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हाँ, उनके और सभी जो भी जीव हैं सब खुशी ढूंढ रहे हैं, एब्सोल्युटली सब खुशी ढूंढ रहे हैं। तरीका अलग अलग है और शायद कुछ तरीके गलत हैं। किसी को चोरी करने में खुशी हो रही है, किसी को छीनने में मजा आ रहा है, तो वो भी खुशी रहे। लेकिन उसको मालूम है मांगने से नहीं मिलेगा, छीनने से मिलेगा, तो वो छीन रहा है। So all the I'm not justifying all the robberies and dacoities, but I'm saying they have their own ways of finding happiness. Ultimately, everybody wants to be happy, correct? पूछो उससे, चोर से भी, ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों गुंडागर्दी करते हो? खुशी के लिए। Even a terrorist who is blasting bombs and killing people, he is doing that for some weird perverted version of happiness only, no? हूर मिलेंगी, जब बॉडी नहीं रहेगी तो हूर मिल भी जाएंगी, तो क्या कर लोगे? और नहीं सर, 72 हो। But if you don't have your body, what are you going to do? Anyway, different thought. But what I'm saying is, ultimately, he also wants happiness only. But it is some wrong version or perverted version of happiness he's looking for. सभी खुशी चाह रहे हैं, बट अगर कोई बीमार होगा तो उसके सोचने का तरीका भी बीमारों वाला ही होगा। तो उसको हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं ना। जी, ब्लेसिंग भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव पीस एंड जॉय की मैं ब्लेसिंग भेज सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे मारने आएगा तो मैं उस समय लव पीस एंड जॉय की ब्लेसिंग्स बाद में दूंगा, पहले मैं डिफेंड करूंगा ना। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन दैट यू आर सेइंग कि अगर कोई इरिटेट मारने आ रहा है मुझे, या कोई मुझे परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो उस समय लव पीस एंड जॉय की एनर्जी कैसे जाएगी? फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज डिफेंड योर सेल्फ फिजिकली एटलीस्ट, करेक्ट? तो सेल्फ डिफेंस तो इवन इवन all the governments have said that self defense is justified. You have to protect your own body first, वरना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी खत्म हो जाएगी, करेक्ट? तो उस समय बेशक लव पीस एंड जॉय ना हो, you defend yourself and you will actually hit him or hit somebody in self defense only with the intention of saving yourself, not with the intention of killing them. Different है ना? उसके बाद it will be again same love peace and joy. Look at all the avatars, any avatar, whether you take Lord Rama or Lord Krishna, they had also resorted to violence. चाहे वो कंस को मारा हो या शिशुपाल को मारा हो, मारना जरूरी था धर्म की स्थापना के लिए। तो अगर आप धर्म के पक्ष में हैं, यू आर वेरी क्लियर and you're doing that out of compassion, you don't have to do that out of revenge. Out of compassion you can do that. So I've actually extended your question to a point where people will justify कि हाँ भाई मारना जरूरी है। तो अगर वो भी कर रहे हो, even then after that you can come back to normal and say okay, now the energy is love, peace and joy. Sometimes war is important to maintain peace. We have seen that many times. वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने के लिए 2 एटम बम डालने जरूरी थे। Get my point? So sometimes war is required or violence is required to maintain peace. But overall, energy should be to maintain peace. धर्म की स्थापना के लिए, not for revenge. That is the point. So Vijay ji, I hope I have added your point.
Yeah, okay, good, very good. Let's acknowledge Vijay ji. Very practical question and very valid objection. बहुत लोगों का ये रहेगा. Okay, anybody else who has any question or doubt? Welcome to the discussion. Kumar Resham ji, I'm sure you would like to add something. This is your favorite topic, Vasudhaiva Kutumbakam, Universal Brotherhood. If you want to share something, please feel free to do that. C. Mani ji, welcome. Pushpa Agarwal ji, namaskar. Madhav ji, Devesh ji, Baljinder Kaur ji, welcome. Yes. Namaskar ji, namaskar. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, anybody else who wants to share something? Apurva ji, Sanjeev, anything you would like to share? Gunjan, you had raised your hand. You wanted to share something? Gunjan ji, if you want to share something, please go ahead. But recently something happened. Yeah. Hmm. Yeah, recently something happened. मैं विजय जी की बात से ही बात कर रही हूँ. तो अभी कुछ हुआ and मैंने कुछ कहा किसी को and the person interpreted in a wrong sense and he responded back. He reacted back, not responded. So I was like, अच्छा मेरा तो ये मतलब नहीं था. तो भाई मैंने तो ये ऐसे कहा है. So I have to give him the clearances. So what do you want to say about that? It's okay. If somebody misunderstood, you can always give clarity. That's okay. वो तो कम्युनिकेशन है ना. एनर्जी आपकी तरफ से तो रिवेंज की नहीं थी ना कि तूने ऐसे बोल कैसे दिया. ईगो तो ट्रिगर नहीं हुआ ना. As long as ego is not triggered, there will be no separation. No. Let me tell you that. It is only the ego which creates separation. Okay. As long as you are creating the energy of love, peace and joy, you will be at oneness. Okay. तो उसमें separation नहीं आएगा. That's a good understanding. So if somebody wants clarity, you give clarity. तो साफ बता दो ये point था. Accept it. Even if you didn't mean to hurt anybody, but if somebody felt hurt, you can say sorry for you getting hurt. I didn't mean that. I didn't say anything wrong. मेरा action गलत नहीं था, लेकिन आपको बुरा लगा उसकी वजह से. I'm sorry. And then you give the clarification. That's good enough. Yes, let's acknowledge Gunjan ji. Okay. Anybody else who has any major disagreement with what I have said, or a different approach, how you can go ahead and create oneness, universal brotherhood कैसे आएगा? देवेश जी, AK अग्रवाल जी, कुमार त्रिशम जी, anybody? कौन बोलना चाहेंगे? पहले तो खुद से ही स्टार्ट करना है. Then we have to start with our family. Then of course our society. धीरे-धीरे we can start. Fair And enough. of course you are right that we have to give love and peace, joy, energy. I totally First agree. thing we have to ensure is that we are absolutely right कि अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से ही बढ़ के हम आगे बढ़ेंगे. अगर मैं अभी बोलूं कि मेरे को रशिया के लोगों को वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, it doesn't make sense. My voice is not reaching there, first of all. Correct. So I will first influence people who are in my circle of influence. Then get the key people to move forward and maybe form a project or form a group, and then we spread the word around. पर लाइट तो पहले अपने अंदर ही जगानी पड़ेगी ना. लाइट को तो तभी स्प्रेड करेंगे. Absolutely right. Like I said, self-love will blossom into love for humanity. Inner peace will blossom into world peace. And my joy and happiness will create heaven around me. That is the only way to spread energy. There is no other way. अगर मैं बोलूं तुम सबको ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो कभी नहीं होने वाला. इंडिया बोले पाकिस्तान को तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, पाकिस्तान बोले इंडिया को तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, कभी भी वननेस नहीं आने वाली है. Right? So wherever there is separation, there is ego. Remember that. और ईगो को साइड में कर देंगे तो अपने आप वननेस में आ जाएंगे.
एंड नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना, बिकॉज नेगेटिव इमोशंस विल ट्रिगर ईगो. Positive emotions will trigger self-love. And self-love is the best way to spread love in the world. Correct? Okay, very good. Let's acknowledge everybody who shared. Anyone else? See, Maniji says, please arrange at least 2 days of line program. Sir, Maniji समझ में नहीं आया. Offline? मतलब ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग, फिजिकल. क्लासरूम ट्रेनिंग. आ जाओ सब लोग, आ जाओ. मैं और Program. सचिव मिलके प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं ना. Offline program in South India, it will be better for us. You arrange a program, I will arrange the tickets, I will come there. Thank you. Absolutely fine, no problem. I, of course, said on a lighter vein, but yes, we'll definitely have a offline program. That makes much more sense. But first, the idea has to seep in. For actions, we can come meet together and implement. But first, that idea has to seep into everybody's heart. Yeah. The heart should be full of positivity. Positivity will result in positive living, and that will reflect as universal brotherhood. That has to be there. Yes. आज सब साइलेंट मोड में क्यों है? Just share whatever is there in your heart. जो भी बोलना चाहें बोलिए. प्रवीण जी. हाँ जी, ये मैं कहना चाहती थी. ओके, हम लव, पीस एंड जॉय अंदर मैंने अपने अंदर पहले लाना है ना. सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्प्रेड इट अराउंड? How will you manifest that on the whole of earth? आपके अंदर तो आ गया, बाकी सबके लिए क्या करना है? बाकी सब ऐसे ही रहें, रोते पीटते रहें. बाकियों को अपनी मेहनत करने दीजिए. उनको बताओगे तो सही ना. वही तो बात चल रही है. That is how you create Vasudhaiva Kutumbakam, right? That is how you spread the word of universal brotherhood. Love, peace and joy. If I'm with someone, so it will spill out to another person. Absolutely. They will feel it, no? But Yes. I'm not going to make an effort to go and I don't want to make an effort. Let it spill over. Let them get the feeling. But I've just seen world में देख लिया है कि वो everyone is closed. हाँ, you have seen that everyone is closed. Most people are कि मैं I know better. Okay. ऐसे हैं mostly. So I this is my feeling that I want to be in love, joy and peace because it gives me a fulfilling life. But others I don't know. Okay, that's fine. At least start with that. You're absolutely right. अगर आपको अभी मालूम नहीं पड़ रहा है तो maybe 10 years down the line you will do something of that sort. Don't worry. When I started my spiritual journey with spiritual healing, that time I just wanted to heal myself. मेरे को बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था. मैं खुश रहना चाहता था. मैं अपने आप को एक ऐसी जगह चाहता था where I was physically, mentally and emotionally absolutely stable. Physically healthy, mentally emotionally stable and spiritually moving forward and doing well in life. But see, after 20 years, what I'm doing? And spreading the light to everybody, that will come. When you are ready, the divine will allow you to do that. जब आप तैयार हो जाएंगे, डिवाइन आपको मैसेज देगा. हाँ जी, हाँ जी. प्रवीण जी, go ahead. I tried with people, but वो बहुत closed हैं, so I then keep to myself, and I fill myself with love, peace and joy. Fine, leave them. Go for others, no? बहुत सारे 800 करोड़ हैं. Choose. बहुत है. 10 लोगों ने मना किया होगा आपको. हाँ, like Praveen sir also says. 10 people said no, and then you start asking people. Go to the 11th one. Maybe the first 10 were no. After that, all will be yes. So keep doing that. And anyway, आप 1 घंटा meditation करके love, peace and joy की energy. If you just sit in meditation for 1 hour and send that energy of love, peace and joy to all the people on this planet Earth, you will make a huge difference. Collective consciousness में आप बहुत फर्क करेंगे.
तो if that is what comes to you, you do that, it is fine. सबको कर्मयोगी बनना जरूरी नहीं है, सबको कर्मयोगी बनना जरूरी नहीं है. आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे काम करके यू कैन बी ए ज्ञान योगी, so you do that. All the rishis and the maharshis, what do they do? That is easier. पेनेंस करते हैं और पूरे वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का प्रेयर पे वाइब्रेशन करते हैं. आप वो करो. You will still connect with all the celestial masters, and you will still connect with all the enlightened people, and your energy will contribute to them. That is fine. But at least do something. कुछ तो करोगे ना. अपने अंदर वो छिपा के नहीं रखना है, रेडिएट करना है. जैसे मर्जी रेडिएट करो. That is the point. Yeah, very good, Praveen ji. Let's acknowledge Praveen ji. Very good. Yes, Kumar Tresham ji. Anything you would like to add, sir? New dimension. जी सर. हाँ जी. सर अभी आपने कहा ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हुआ था. वो दैट वाज गुड जस्ट टू वाइंड अप द वॉर, बट वी फील it was just the US to establish themselves superpower. Otherwise, it was not needed. Japan and Germany were in the state of surrender, so that was not needed. और ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ. अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आज कोई न्यूक्लियर रेस शुरू ही नहीं होती. That was the root cause जिसने न्यूक्लियर रेस शुरू की. तो अमेरिका is totally responsible for this nuclear race. Correct, I understand that. There is another viewpoint on the same incident, which is okay. Yeah. दूसरा पॉइंट ये है कि सर यूबी की बात करते करते जिंदगियां बीत गई सर, शताब्दियां बीत गई. वसुधैव कुटुंबकम की बात करते प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा, क्योंकि पॉलिटिकल वर्ल्ड डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने तरीके से ऑपरेट करता है. उनमें एक अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग होनी चाहिए. इट इज लैकिंग. तो इट्स द टाइम टू एक्सप्लोर बैलेंस इन मेटलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म. देन चीजें बनेंगी. अदरवाइज ये जब तक यूबी और यूडी जो है ना, इस पे काम इसलिए नहीं हो पा रहा कि एक यूएम नहीं है. आज एक वर्ल्ड की स्पिरिचुअल बॉडी बनने का वक्त आ गया, हाईली स्पिरिचुअल, एक सुप्रीम बॉडी ऑन दिस प्लेनेट. उसके बिना अब ये वसुधैव कुटुंबकम पॉसिबल ही नहीं. वरना इसकी सिर्फ बातें रहेंगी, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा ये. और प्रैक्टिकल होने के लिए ऑल ऑफ अस विल हैव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफॉर्मिंग दिस विजन एज ग्राउंड रियलिटी. अदरवाइज तो बातें ही बातें हैं सर. और एक्चुअली क्या है कि वी आर वर्किंग इन एन आइसोलेटेड मैनर. देयर इज नो कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन. तो इस कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन एंड यूनिफिकेशन इज द नीड ऑफ द टाइम टू एक्सप्लोर बैलेंस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. बस इतना कहना सर. तो ये क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए सर हम तो कह रहे हैं कि यूबीएम यूडी इज द मैसेज ऑफ नेचर, सिग्नल ऑफ नेचर, डायरेक्टिव ऑफ नेचर. इस पे मंथन करिए आप, देखिए पूरी दुनिया कनेक्ट हो जाएगी और एक सुप्रीम बॉडी का उसमें से जन्म होगा. यूएम जिसे कह सकते हैं हम. यूएम, यूबी एंड यूडी विल जस्ट बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ अवर मंथन. यूबीएम यूडी इट इज द 3 डायमेंशनल एजेंडा ऑफ 3D नेचर. इससे हम लोग प्रकृति का एजेंडा मान के कार्य चलेंगे तो डेफिनेटली ये वननेस आएगी. और पूरा एक वी विल एंटर इनटू न्यू एरा ऑफ द मैनकाइंड. संगम युग कहें उसे, एक हार्मोनियस वर्ल्ड कहें, एक मिलनसार भक्तिमय संसार कहें, कुछ भी आप इसे कहें, एक गोल्डन एरा कहें, गोल्डन एज कहें, पर वो मुमकिन है. पर क्योंकि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो उन्होंने कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन पे काम किया ही नहीं. अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रख रहे हैं. दैट्स द रूट काज. और इस आज पूरी मानवता का भविष्य खतरे में है. एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे to give new direction to the mankind, but to explore connectivity, integration and unification among all such pious divine souls on this planet. Okay, great. Wonderful. Everything will happen with due course of time. सब अपने आप हो जाएगा. Perfect. I understand your viewpoint, sir. Thank you very much for sharing your point of view. Let's acknowledge Tresham ji. और सर एक गुजारिश करेंगे, कभी आप इस यूबीएम यूडी पे भी कभी सेमिनार रखें जब आपको अच्छा लगे. सर आज यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे ही हमने बात करी है शुरू, बिकॉज़ पीपल हैव टू मूव स्लोली. नहीं सर, तीनों पे, तीनों साथ साथ, यूबी यूएम यूडी तीनों जब तक साथ नहीं होंगे, इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते. यही गलती होगी सर. यूबी को हमने अलग कर दिया, डिसआर्ममेंट को अलग कर दिया, यूएम को अलग कर दिया, यही गलती होगी और तभी कुछ हो नहीं पा रहा. जब तक आप इसे कंपोजिट एजेंडा के रूप में नहीं लेंगे ये काम होगा ही नहीं. यूबी यूएम यूडी इट्स द कंपोजिट एजेंडा ऑफ नेचर.
इसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलग होने से ही चीजें प्रैक्टिकल हो नहीं पा रही हैं चीजें। Okay, fine, sir. Got it. Thank you very much. Just acknowledge जी Kumar सर, ji. जी सर। Yes. Anybody else who would like to share? कौन बोलना चाहेंगे? और तो कह रहे थे सर, हमारी समझ में नहीं आया, यूडी यूपी व्हाट सर वाज सेइंग। उनका एक प्रोग्राम है विच उनका पूरा एक ग्रुप है जहाँ पे वो ये 3 चीजों की बात करते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल मास्टर्स एंड डिसआर्मामेंट, यूडी, यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मीन्स बेसिकली जो वार है या जो भी आर्म्स जो बना रहे हैं उनके लिए, राइट? So that is why he said the dropping of bomb was the most biggest mistake of World War II, right? So ठीक है, he has a wonderful concept and a lot of people are in that group working on it. So slowly we will understand that. But my idea was to bring in first the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, which is universal brotherhood. Let's understand that and create that sanskar in us, which will help us to move in that direction. At least let us understand what does it mean. Correct? All right, very good. Yes, Gunjan ji, go ahead. मुझे लगता है कि when there is light, there is dark, and दोनों का अपना अपना एक रोल है जो जरूरी है इस धरती के लिए। तो वॉर भी जरूरी है एंड पीस भी जरूरी है। लाइक यू सेड that we have to do the war for maintaining peace. So Not that always, is, but yes, that can be a, yes, you can say, yes. Sometimes yeah, punishment is important to maintain discipline, correct? yeah, Like like that. जैसे अब मेरा बेटा पढ़ता नहीं है तो मुझे एक सेकंड तरीका भी अपनाना पड़ता है एज अ मदर। Understand that. I got that. Yeah. So see, you have to understand waking world या relative world में duality है. You can't say कि यहाँ Yes. duality क्यों है? ये duality है. We have to live through this duality and then move towards non-duality. You can't say कि सुख और दुख क्यों है, सिर्फ सुख चाहिए, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। If you say कभी खुशी कभी गम क्यों है, मेरे को सिर्फ खुशी चाहिए, नहीं होगा, गम मिलेगा ही मिलेगा, संसार है ये। Even Buddha's teaching say that dukham dukham sarvam dukham. It is all about suffering and misery in life. Reality में यही है। अब इसके पार जाना है हमको, इस Yeah. सागर जो संसार रूपी भवसागर है, इसी के पार जाने के लिए हमको डुअलिटी को पार करके नॉन डुअलिटी में जाना है। बट फर्स्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉन डुअल। मैं सोल हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। ईगो कॉन्शियसनेस में कुछ क्रिएट नहीं होगा, वो तो सिर्फ पॉइंटिंग फिंगर्स ही होगा। इट विल ऑल बी अबाउट ब्लेमिंग अदर्स और बीइंग इन गिल्ट। तो गिल्ट और ब्लेम से कुछ क्रिएशन नहीं होगा। लव पीस एंड जॉय की एनर्जी जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हेन यू विल मीट लाइक माइंडेड पीपल एंड यू कैन डू some manifestation in your life which will be in the form of magic and miracles. That's all I can say, and I'm saying that from my experiences in life, right? सर अगर Okay. सारे ही जिंदा रह गए तो धरती तो 800 करोड़ से मेरे ख्याल से 8000 करोड़ चली वो जाएगी। प्रकृति को मालूम है। See, प्रकृति is always maintained by the पुरुषा and Yeah. शिव और शक्ति का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्रकृति और पुरुष बहुत सही ढंग से चलते हैं। We don't have to worry about what is going to happen to planet Earth. Planet Earth has been doing wonders. हाँ, Yeah. वो तब से सन के अराउंड जा रही है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से घूम रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, तो वो नहीं होगा। Solar system and universe will know how to maintain themselves. If we want to survive on this planet Earth, we have to learn manners. We have to discipline ourselves. We have to rope in our ego and selfishness and greed. Otherwise, we will be destroyed. Planet को कुछ नहीं होने वाला. Planet is absolutely perfect. Right? All right, good. So good discussion. Let's acknowledge everybody. Yes. Who else? कौन बोलना चाहेंगे? Anybody else? Sanjeev, you have been silent today. I have been listening to a lot of points जो सब बोल रहे हैं. So my point is very simple that जैसे त्रेशम जी ने भी बोला and all of us talking, गुंजन ने भी बोला, I feel personally small drops are very important. Drop by drop अगर हम करते जाएं तो सब कुछ हो जाएगा. सो अगर हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हम अगर अपनी फैमिली से शुरू करते हैं
और उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना शुरू करें. आई थिंक दैट विल बी लाइक अ बिग जर्नी, रादर देन पूरी दुनिया को जोड़ने में लगे कि वहां नहीं हो रहा तो यहाँ होगा. और वहां से अगर उस चक्कर में हमारे पास अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है हमारे अंदर, हमें लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो फिर जनरली जो हम सुनते हैं फिर तो एक ही जवाब मिलता है, तथास्तु, कि नहीं होगा. दुनिया में होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, बट जो सोच रहा है नहीं होगा वहां पे जरूर नहीं होगा. So that's what I feel personally, कि let's start at, or everybody start at the individual level in their family and see then how it spreads. So I'll give a small example. Around 5 साल पहले एक दिमाग में आया कि I'll stop alcohol, right? तो जब मैंने एक आध जन से बात की, बोला ऐसे थोड़ी होता है, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता, नहीं करेगा. And I said okay, I stopped alcohol. People started teasing me. They started not accepting it, but I was consistent. Now this ripple is expanding. So that's what I would say, कि let's just start this वसुदेव कुटुंबकम अपने घर में, क्योंकि हमने अपने घर में भी जो 4 मेंबर रहते हैं वहां भी नहीं कर रखा, तो क्या हम दुनिया की बात कर रहे हैं. So let's talk positive and start that. That's what my point of view. Thank you. Very good, very good. Thank you, Sanjeev, for sharing that. Very, very practical. And that is how we actually need to move on. I've been saying that first you have to fill it up with yourself. आपके अंदर कितने लोग हम actually में commit कर सकते हैं कि at least एक दिन ऐसा हो जब मैं पूरे सुबह से शाम तक या 24 घंटे तक एक भी नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर नहीं आएगा. That is the first point that we need to start, because if there is any negative emotion in you, you will not be able to create anything in your life. Let me tell you that very, very clearly. अगर आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी मैजिक और मिरेकल्स क्रिएट करने हैं, तो आपको लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी लानी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या बोल रहे हैं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. हेल्थ खराब है, नेवर माइंड. बॉस के साथ जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, मैं लव, पीस एंड जॉय में रहूंगा. Nobody is going to shake me up from there. And once you are habitual of living with positive emotions, positive living will happen. And once you start living positive, that energy will radiate to people around you and people will follow you and get inspired by you. That is the only way. क्या नहीं हो रहा है देखने की जगह ये देखें क्या हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है. Many spiritual organizations, many people who are doing their best, and many light workers are there and who are doing that. There is definitely a rise in consciousness on the planet Earth. We are all contributing to the collective consciousness of the planet Earth. So let us radiate that energy of love, peace and joy to everybody first, and then move into action mode. Whatever you can do in whichever capacity you can do, start doing it, and that will make a impact. Yes, Sapurva ji, go ahead. I was waiting for this point that you said. Vasudhaiva Kutumbakam is a very, very big thing. You can keep imagining and keep thinking about how it will manifest, or how it will happen, or what will it be like when it happens. But how do we start doing it from ourselves, and what are the steps that we should do is something which is very important. I think even Sanjeev ji mentioned about it. We should start trying to spread love, peace and joy within our own circle, and once it starts manifesting in that way, probably that's how the effect will progress. So from one center to the other center to the next center, and when all those centers merge by themselves, probably that is when is what I can just think about as end result of Vasudhaiva Kutumbakam, coming from spreading love, peace and joy in the individual centers. Absolutely. That is why we say दीप माला वैसे ही बनती है ना, जब बहुत सारे दिए जलते हैं और उनकी एक माला बन जाती है, then it becomes a human chain, and then it becomes a huge दीपावली और दीपों की माला बनती है.
So every individual, every awakened person is like a lamp, is a light. He's radiating that light, and the more people who are radiating this will form connectivity within themselves and then raise the consciousness on the planet. See, whatever you are doing, wherever you are doing, if you are raising the consciousness on the planet Earth, which is bound to happen because all of us are connected. तो we just have to contribute कि हमको उस तालाब में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का तालाब है उसमें पानी नहीं डालना है, आज के बाद सिर्फ दूध डालना है बस। ये वाला अगर हम एग्जाम्पल याद रखें और दूध डालना शुरू कर दें, एक ना एक दिन वो तालाब दूध बन के ओवरफ्लो होगा ही होगा। और उसमें अगर कुछ लोग पानी डाल रहे हैं तो वो भी बाद में सुधर जाएंगे, वो दूध डालना शुरू कर देंगे। करेक्ट? एंड दैट जो हम दूध बोल रहे हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, और वो डेफिनेटली इम्प्रूव होना ही है। शर्त ये है कि मैं हर रोज 1 गिलास प्योर दूध डालूं उसमें। कितने लोग ये करने को तैयार हैं? गुड। सो क्रिएट दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वेयरएवर यू गो, चाहे फैमिली में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे आपके सिटी में हो, स्टेट में हो, जहां मर्जी हो, डू दैट। And Parveen ji, you can radiate that glass of milk to anybody who is coming to you. आप 2 ग्लास पकड़ो दूध का, एक खुद पियो, एक दूसरे को पिला दो, जो भी आ रहा है। ठीक है। आप उस स्टेप पे चलो, एक एक कदम लेके चलेंगे। Right? I like the meditation is easier. The meditation part was easier कि वहां से मैं radiate करूं। बिल्कुल करो। Even that is good enough. You will connect with all the celestial masters. You will connect with all the enlightened people. उनकी वाइब्रेशन के साथ आप कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे। And if everybody, by the way, अगर सारे 800 करोड़ लोग मिलके अगर 5 मिनट की मेडिटेशन रोज करें और लव पीस एंड जॉय के संस्कार अपने अंदर लाएंगे, it will become a सतयुग overnight. It will become universal brotherhood overnight. होगा कि नहीं? तो वो इंस्पिरेशन चाहिए, वो इंस्पिरेशन चाहिए जो इतने लोगों को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके कि अपने सबके अंदर दिव्य संस्कार हैं। वी डोंट हैव टू क्रिएट एनी संस्कार। सबसे बड़ा विलन भी इस प्लैनेट अर्थ में जो है, उसके अंदर लव पीस एंड जॉय के संस्कार हैं, वो सिर्फ एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जिस दिन वो मैजिक मोमेंट आएगा वो हो जाएगा, बट लेट्स वर्क ऑन दैट। यस विजय जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? गुड सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू 1 + 1 2। जो आप बोल रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं, वो भी करेक्ट है। और जो कुमार कृष्ण जी बोल रहे हैं, एक यूनिफाइड एफर्ट की जरूरत है। तो वो यूनिफाइड एफर्ट अगर इंडिविजुअली हम लोग सब जो है उसी डायरेक्शन में चलें और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में करें, तो होपफुली वी विल स्टार्ट टू गेट समवेयर। बट कंसर्टेड एफर्ट which the organizations like Kumar Krishna ji is talking about, well, that is something which will create a quick ripple effect. Definitely that is important, I know that, but right now अभी हमको पहले इंडिविजुअल लेवल पे, I always believe in that, so I will always suggest कि पहले इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने अंदर, क्योंकि ग्रुप में अगर होंगे तो भी पूरे ग्रुप के सारे लोगों को ये अपने अंदर वो दिया जलाना ही है, तभी ये प्रोग्राम जो है आगे स्पीड पकड़ेगा। I fully agree with Kumar Trisham ji. I've been interacting with him a number of times, and I'm fully aware of the kind of commitment he has for this project. Right. So the 3 pillar that he has mentioned is very, very important, and I'm fully convinced about it. And definitely, it is going to happen one day. But individually, first, it has to be there in the heart of every individual. That is the path. Then collectively, we can work out. कर्म योगी, मैंने कहा ना, कर्म योगी हर एक के लिए, हर एक के बस की नहीं होगी, लेकिन मेडिटेशन या ज्ञान योग में रह के एनर्जी ऑफ लव पीस एंड जॉय रेडिएट करना, दैट इज इजियर फॉर एवरीबॉडी। लेट अस एटलीस्ट डू दैट। अपने अंदर तो जोत जगाओ। फिर जिसको कर्म योगी बनना होगा वो कर्म योगी बनेगा, जिसको ज्ञान योगी बनना होगा वो ज्ञान योगी बनेगा। कोई भक्ति योग में खुश है तो उसको भक्ति योग में रहने दो, और जो ब्रह्म कुमारीज कर रही हैं या फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, श्री रविशंकर जी कर रहे हैं, सदगुरु कर रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से कर ही रहे हैं ना, सब इस्कॉन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। सो कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस तो बढ़ ही रहा है ना प्लैनेट का। वन डे दे विल गेट ऑल यूनिफाइड। यस, बट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, यूनिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, सिनर्जी तभी पाएगी। यस, ऑल राइट, वेरी गुड। सो वी आर अप्रोचिंग द एंड टाइम। अनिरुद्ध जी, कहाँ मिसिंग थे आप?
क्या नहीं बोलना नहीं सर, मैं चाहेंगे? सुन रहा, मैं कहीं बाहर गया हुआ था सर, अभी घर पहुंचा हूँ। जो बस शेयर करना मेरा चाहेंगे यही आप? कहना था, मैं बस दो एक यही कहना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जो आपने बताया है बहुत अच्छा बताया सब लोगों ने। तो जो अपना हर एक को अपना लेवल, कॉन्शियस लेवल, स्पिरिचुअल लेवल ऊपर करना है, और उसके लिए जैसे बात हो रही थी कि हमें अपना करना है, जो अपने में ग्रीड, ईगो, सेल्फिशनेस एंड दूसरों को फॉरगिव करना, ये अपने में लाना है। और दूसरा जो है, जो अपना सर्कल जैसे बताया सभी बता, जो भी सर्कल आपका छोटा है बड़ा है, उस सर्कल में इस बात को उनके उनमें भी डालना है। उसमें डालने का तरीका ये है कि उनकी हेल्प करनी है, और हेल्प के साथ साथ अगर जो भी उनको इस मामले में कोई भी सलाह चाहिए वो सलाह देनी है। और उसके साथ साथ जैसे बात हो रही थी कि जो आपने बहुत अच्छा बोला कि 10 नहीं मानते तो 11वें से स्टार्ट करो, तो वो मैसेज तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल लेवल ऊपर करना है तो इसमें तीनों चीजें साथ साथ चलनी पड़ेंगी, अपने में भी करना पड़ेगा, दूसरों में भी करना पड़ेगा, स्प्रेड भी करना पड़ेगा। और अगर सभी थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएं डेली, थोड़ा सा जो कल था आज उससे ऊपर होना चाहिए, और आने वाले दिन में और थोड़ा सा ऊपर हो, तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, कलेक्टिव पावर जो कहते हैं, वो आएगी आएगी। अल्टीमेट गॉड का, डिवाइन का पावर का एम वही है कि जो जैसे जो है कि टोटल शांति आनी है, टोटल पीस आनी है, टोटल डिसआर्ममेंट आना है, ब्रदरहुड आना है, ये तो आना ही है। तो जितनी जल्दी आ जाए, और उसमें हमारे जो भी एफर्ट्स थोड़े बहुत हों, वो हमें उसमें जैसे होता है ना, उसमें अपने एफर्ट्स डालने चाहिए, हर एक को डालने चाहिए। तो उसमें ये अपनी अपनी फिर मैं वही बात पहले जो कई बार कहता हूँ, ये इससे ब्लिस मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, अपने को भी मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। जब दूसरे को मिलता है तो अपने को भी मिलता है। बिल्कुल तो इसमें आगे बढ़ते रहो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। परफेक्ट। थैंक यू अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया से आपने पूरे समराइज कर दिया। सो टेक अवे फ्रॉम द सेशन टुडे, क्या टेक अवे है आज का सेशन? अनिरुद्ध जी ने तो बता दिया, रेशम जी तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, ये उनका तो जिंदगी का मकसद ही यही है, राइट? व्हाट आर द अदर्स टेकिंग अवे, क्या लेके जा रहे हैं? व्हाट आर यू टेकिंग अवे फ्रॉम द सेशन टुडे? सन्नाटा लेके जा रहे हैं? Sir, it is in the music only. एकजुट होकर रहेंगे हम। एकजुट होकर रहेंगे हम, अच्छा ठीक है। All right, so everybody is clear on this, we have talked a lot. So the only point that I will say is that मैं सिर्फ एक ही टेक अवे देना चाहूँगा, अपने अंदर लव, पीस एंड जॉय की जोत जगाओ और स्प्रेड करो। और जो भी मिले, जो भी जहाँ भी आप लोगों को मिल रहे हैं, वहाँ पे ये कोशिश करनी है कि एक गिलास दूध का कंट्रीब्यूट करना है, पानी नहीं। दूध बोलो, अमृत बोलो, जो मर्जी बोलो, पर आप एक ग्लास दूध कंट्रीब्यूट करेंगे और आपको देख के कितने लोग इंस्पायर होते हैं, और वो तालाब कितनी जल्दी आप दूध का बना सकते हैं, वहीं से पता चलेगा कि वसुधैव कुटुंबकम कितनी जल्दी प्लेनेट पे आएगा। So that is the takeaway which I want everybody to take, right? Bring that into your life, and of course we are always here on Wednesday meets to दोबारा से उसको आपके अंदर सिस्टम में आपके ड्रिल करने के लिए। So we'll keep meeting and keep talking of these concepts, and next time till we meet, Aham Brahmasmi. Enjoy a great day, enjoy a great week, and enjoy your life with love, peace and joy. Thank you, Thank sir. you. Good night. Bye-bye. Good night, sir. Bye, Good night. everyone. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.